So today we are going to discuss about dowry death. We are going to discuss about dowry death. Last time we had discussed about death by negligence under section 304A. Today we are going to discuss about dowry death. Dowry सभी को पता होगा. Every person might know about dowry where before marriage the boy is demanding certain amount of money or property or any kind of thing which is valuable and which is against the will of the girl and her family. For that we have a specific law where it is very clear that we have a law to prevent, prohibit and punish those people who are involved in taking dowry. Okay, but in India lot of these things are kept very informal. Nothing is on record. It becomes very difficult to prove whether the dowry was demanded or not demanded. So it becomes very difficult. So even after marriage, if the family of the husband keeps on demanding more money, where the girl or girl parents are not able to pay, that might cause to her death. Now under IPC, there is a specific provision for dowry death which was added by amendment. Because most of these cases were rising in India. बहुत सारे cases India में rise हो रहे थे dowry deaths के. Where if the family of the girl is not able to pay, then that used to lead to the death of that girl by saying that she committed suicide, or it was an accidental death because of the blast of the gas cylinder. That is quite common. Or she ran away. They used to kill her and used to bury her body in such a way that the body will never be found. So she ran away, alleging that she had some affair with some other third person. So such kind of things are happening on a very large scale in India. So that's why specific amendment was required under IPC section 304B dowry death, which mentions about where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise. तो ज़्यादातर देखा गया है डाउरी डेथ्स में जला के मारा जाता है ज़्यादातर, या किसी भी तरीके से अगर आप किसी औरत को ऐसे इंजोर करते हो दैट लीड्स टू हर डेथ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज. 7 साल के अंदर अगर किसी लड़की की मौत हो जाती है, किसी शादीशुदा लड़की की उसके ससुराल में मौत हो जाती है, द फर्स्ट डाउट which comes in the mind is whether that was a dowry death or not. So this 7 years criteria has been put up under IPC. 7 साल आप बोल सकते हो कि शादी नहीं है. You can say after 7 years, obviously till then you have kids and your family settle down. 7 साल काफ़ी, 8 साल 9 साल 10 साल काफ़ी टाइम ज़्यादा हो जाता है. Probability of dowry death reduces after 7 years. ऐसे एनालिसिस करके उन्होंने बोला 7 साल के अंदर अगर कोई शादीशुदा लड़की, if she dies in her sasural, the chances of dowry death are very high. That's why this criteria has been mentioned under IPC section 304B. Within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subject to cruelty, harassment by her husband or by husband's relatives. Relatives में अभी सास ससुर, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो भी होगा, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने उसको हरास किया, क्रूएल्टी उसके साथ ट्रीटमेंट की इन कनेक्शन फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी. डाउरी के लिए क्रूएल्टी परफॉर्म की, डाउरी के लिए आपने उस लड़की को हरास किया. दैट हैज़ टू बी द इंटेंशन सो दैट पर्टिकुलर फैमिली विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 304B. द इंटेंशन फॉर डूइंग क्रूएल्टी और द इंटेंशन फॉर हरासिंग हर हैज़ टू बी डाउरी, नॉट एनीथिंग एल्स. कि हम डाउरी डिमांड कर रहे, उसके वजह से उसको हरास किया, उसके साथ क्रूएल्टी ट्रीट की, ऐसे मौत को हम डाउरी डेथ कहेंगे. सच काइंड ऑफ डेथ विल बी कॉल्ड एज डाउरी डेथ विदिन 7 years ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स आर harassing her, treating her with cruelty, then leading her to death. That death will be called as dowry death. And for that punishment under IPC is minimum 7 years to maximum life imprisonment. Minimum 7 years to maximum life imprisonment, which is caused under this particular provision. ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 304B है. सो यहाँ पे एक प्रिजम्पशन है
in this particular section there is a presumption that in the case of section 304B it will be presumed, मतलब केस चालू होने से पहले ही कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स आर लायबल फॉर मर्डर, आर लायबल फॉर डाउरी डेथ। अभी हस्बैंड और उसके फैमिली को प्रूव करना पड़ेगा दैट दे हैव नॉट कॉज्ड डाउरी डेथ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट। यहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने डाउरी डिमांड नहीं की, हमने उसको हैरेस नहीं किया, हमने उसको नहीं मारा। सो इट विल बी प्रिज्यूम बाय द कोर्ट दैट दे हैव कमिटेड डाउरी डेथ। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड and his relatives to prove that it is not a dowry death. It might be an accident or it might be a suicide. If it's a suicide, then give us the reason. Why? Okay? So, जैसे मैंने कहा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। कि अगर प्रोसिक्यूशन बोलती कि इसने मर्डर किया, तो जो एलिगेशन करता है उसको कोर्ट में अपनी बाजू सिद्ध करनी पड़ती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डाउरी डेथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, यहाँ पे हर केस में जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमन है वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू डिफेंस। जहाँ पे लड़कों को या हस्बैंड्स को या उनके रिलेटिव्स को प्रूव करना पड़ता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इट विल बी प्रिज्यूम्ड जो लड़की बोल रही है वो सच है, और लड़कों को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये केस फेक है। समझ में आ रहा है? ऑल डन? ओके। नाउ देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, राजबीर राजू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वेरी इंटरेस्टिंग केस, आप लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, राजबीर राजू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2010 की केस है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस केस, बिकॉज दिस केस इज अ लैंडमार्क केस। राजबीर राजू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2010। नाउ इस केस में क्या हुआ, द पिटिशनर जो हस्बैंड है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ विद इन 6 months ऑफ हिज मैरिज। 6 महीने के अंदर हस्बैंड ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मार डाला। ओके, एंड ओवर हियर ऑब्वियसली ही वॉज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 304B, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल है और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो जो ट्रायल कोर्ट है, आपका सेशन कोर्ट है, जहाँ पे सबसे पहले केस फाइल की गई, उस पर्टिकुलर केस ने उस पर्टिकुलर हस्बैंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कि भाई ज़िंदगी भर ये जेल में रहेगा, 14 साल के बाद देखते हैं कि ये सुधर गया कि नहीं सुधरा। 6 महीने के अंदर उसने अपनी बीवी, प्रेग्नेंट बीवी को मार डाला फॉर डाउरी। ये प्रूव हो गया कोर्ट में। उसने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, अपील फाइल की। ओके, नाउ इन दिस केस हाई कोर्ट ने पिटीशन को सुना और उसका जो पनिशमेंट था वो कम कर दिया, फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू 10 years, क्योंकि एज पर आईपीसी 7 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ट्रायल कोर्ट ने मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी, हाई कोर्ट ने कम कर दी। तो ऑब्वियसली अगेन द प्रोसिक्यूशन एंड द फैमिली ऑफ द गर्ल वर नॉट हैप्पी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया अपील कि ये आपने सही नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि द नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, द क्राइम अगेंस्ट वुमन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड देयरफॉर दे हैड गिवन डायरेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट gave directions to all the registrars of the high courts in all the states that henceforth whenever section 304B is applied, उसके साथ 304B के साथ 302 भी लगेगा, मैंडेटरीली लगेगा। सो 304B इज डाउरी डेथ प्लस मर्डर, सेक्शन 302 लगना ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोगों को बोल दिया कि देखिए हमारे देश में डाउरी डेथ बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमें पनिशमेंट बढ़ानी होगी। तो रादर देन मेकिंग अ चेंज इन द सेक्शन इटसेल्फ, उन्होंने बोला कि हर बार डाउरी डेथ में 302 को भी लगाना है, मर्डर का भी चार्ज लगेगा अलॉन्ग विद डाउरी डेथ।
अभी मर्डर का क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट? डेथ पेनल्टी और मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो इट वॉज दिस डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट वॉज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. इट इज़ अ वेलकम स्टेप बिकॉज डाउरी डेथ जो है वो मर्डर ही है. बेसिकली इट इज़ मर्डर. द रीजन, द इंटेंशन इज डाउरी. सो इस केस में एक तरीके से उन्होंने बोला कि अभी हेंस फोर्थ, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्योंकि क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके आगे हर कोई डाउरी डेथ के केस में मर्डर का भी चार्ज लगेगा. और हर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया गया, सभी को बताया गया कि मर्डर प्लस डाउरी डेथ दोनों चार्जेस इसके हेंस फोर्थ लगेंगे. सो दैट दिस 2010 की जो केस है ये लैंडमार्क केस है कि सुप्रीम कोर्ट टुक डाउरी डेथ वेरी वेरी सीरियसली बिकॉज इट इज रैम्पंट इन इंडिया. ओके, हाँ 10 साल. ओके, नाउ इसलिए मैंने बोला क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है. और हाई कोर्ट के डिसीजंस को भी सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर रिस्पेक्ट ही करता है. बहुत रेयर होता है कि ओवरटर्न किए जाते हैं, बहुत रेयर. तो यहाँ पे 10 साल की सज़ा हुई उसे, ठीक है. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 14 साल की जगह पे 10 साल हो गए, 4 साल कम कर दिए उसके. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ओवर हियर इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. सेक्शन 305 एंड सेक्शन 306. सेक्शन 305 है, दिस इज स्पेसिफिक विद रिगार्ड टू अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18, द पर्सन हु इज इनसेन, द पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, द पर्सन हु इज इडियट, द पर्सन हु इज डिलेरियस. ऐसे इंसानों को अगर आप मदद करते हो सुसाइड कमिट करने के लिए तो आपको सेक्शन 305 में एप्लीकेबल होगा. सो helping a minor, helping an insane person, helping an intoxicated person to commit a suicide, you will be charged under section 305. You will be charged under section 305. यहाँ पे ये सेक्शन की क्यों ज़रूरत है? जहाँ कहीं भी कोई माइनर है जिसके माता पिता गुजर चुके हैं, they have passed away, and उनको एक गार्डियन अपॉइंट किया गया है जो गार्डियन उसकी लाइबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वो गार्डियन खुद ही बच्चे को इंस्टिगेट कर रहा है सुसाइड कर ले. क्योंकि कई बार अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा किया जाता है कि दीज पीपल आर अपॉइंटेड एज अटर्नीज और दीज पीपल आर अपॉइंटेड एज ट्रस्टीज टिल दैट चाइल्ड बिकम्स अ मेजर. उनको पता होता है कि एक बार ये मेजर हो गया, 18 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, प्रॉपर्टी इसकी होने वाली है. और उसमें क्लॉज भी होता है कि अगर कुछ बच्चे को कुछ हो गया, पुराने मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर्टी वो ट्रस्टी की या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या गार्डियन की हो जाएगी. तो मारेंगे तो नहीं तो उसको ऐसा करेंगे कि वो सुसाइड कर ले. तो उनके लिए, ऐसे लोगों खिलाफ के लिए, ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए सेक्शन 305 अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. तो ये सेक्शन क्या कहता है? इफ़ अ पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18, इनसेन पर्सन मतलब जो मेंटली अनस्टेबल है, डिलीरियस पर्सन मतलब एक तरीके ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है, क्रेजी पर्सन. समटाइम्स ही लूजेज हिज सेंस, कभी कभी वो अपना आपा खो बैठता है. ऐसा देखोगे नॉर्मल बात करेगा लेकिन कभी कभी आपा खो सकता है, कुछ भी कर सकता है. डिलीरियस पर्सन मीन्स कोई गारंटी नहीं है ये क्या करेगा, कब कैसे बिहेव करेगा. उसके बाद एन इडियट मुझे मूर्ख, स्टूपिड पर्सन, जम कर दो ओके, या स्टूपिड पर्सन यहाँ से बेटा जम कर दो, तुमको ना मैं पूरे तुम्हारे इंटरनल्स में आउट ऑफ मार्क दे दूंगा, जम ओके. और उसने जम कर दी, मर गया. अरे सो ऐसा इडियट मतलब हम बहुत किसी को भी इडियट बोल देते हैं, किसी को भी स्टूपिड बोल देते हैं, लेकिन उसका लीगल मीनिंग बहुत इन डेप्थ है. एक्चुअली अ पर्सन हु इज इडियट हु डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस. ओके, अ पर्सन हु इज इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. जब कभी भी आप ऐसे इंसान को सुसाइड करने में मदद करते हो तो आपको डेथ पेनल्टी हो सकती है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो 10 साल या फाइन. अगेन ऑल द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट गिवन टू यू
विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। कोई बच्चा है 10 साल का 12 साल का, उसको आपने सुसाइड करने के लिए फोर्स कर दिया, डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। 10 12 साल 15 साल के बच्चे को आपने सुसाइड कमिट करने के लिए मदद की। कोई पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल है, इंसेन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपने बोला चॉकलेट है, चॉकलेट के अंदर आपने पॉइजन डाल दिया, मार दिया, तो आप सर्कमस्टांसेस को देख के उस पर्टिकुलर पर्सन को आप सज़ा दे सकते हो अंडर सेक्शन 305। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते तो सेक्शन 05 लगेगा, नहीं तो सेक्शन नंबर 306 लगेगा। इफ एनी पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड और उसको हम मदद कर रहे हैं, नाउ दिस पर्सन इज अ नॉर्मल person who is a major, who is sane, who is not an idiot, who is not intoxicated, very normal person like me and you, आम आदमी, मैंगो पर्सन, कि भाई बहुत नॉर्मल बंदा है और इसको आपने मदद की। जो मैक्सिमम केसेस जो हम सुसाइड के आज देखते हैं उसमें सेक्शन 306 होता है, किसने मदद की क्या इसकी। तो इस केस में आपको सज़ा कम है, 10 साल तक सज़ा होगी या फाइन। लेकिन उसी जगह पे किसी बच्चे को मारते हो, किसी इंसेन पर्सन को मारते हो, किसी पर्सन जो इंटॉक्सिकेट उसको मारते हो, तो आपको डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। दोज पीपल आर नॉट, उनका कंसेंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे कंसेंट मैटर करता है। लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड, और हमने जो देखा था मर्डर का क्लॉज, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ यू आर किलिंग एनी पर्सन अबाउट द एज ऑफ 18 विथ हिज कंसेंट। तो ये दोनों सेक्शन कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अबेटमेंट टू सुसाइड है या ही इज एक्चुअली कल्पेबल होमोसाइड है। तो वो अगेन सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे कि आप ही ने उसको मारा या आपने उसे मदद की मरने के लिए। एग्जाम्पल, वो बोलता है कि हाँ भाई मेरे गले पे छुरी घुमा दे, कल्पेबल होमोसाइड, उसकी कंसेंट है, 18 साल का बंदा है, 19-20 साल का है, मेरे गले ऊपर से छुरी घुमा दे, आपने घुमा दी, कल्पेबल होमोसाइड। उसी जगह पे उसने मुझे बोला सर मुझे आप नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लाके दीजिए, मुझे इनहेल करके मरना है। मैंने नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लाके दिया, मैं चला गया, अबेटमेंट टू सुसाइड। मैंने उसकी मदद की, ये लो भाई नाइट्रोजन गैस, डोंट वरी, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना, वरना मैं नहीं मदद करूंगा, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ठीक है सर, डन। तो ये हो गया अबेटमेंट, में उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली जाके मैंने उसको मारा, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सर पे ऊपर दे मारा कुछ पत्थर, दैट इज कल्पेबल होमोसाइड, वेयर ही हैज गिवन द कंसेंट टू किल हिमसेल्फ, दैट इज कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन 306। नाउ देयर इज अ केस, आप लिख लीजिए, वज्रेश आवेकर, वज्रेश आवेकर, वज्रेश अन्वेकर वज्रेश अन्वेकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ यहां पे क्या हुआ, दिस इज अ केस वेयर अबेटमेंट टू सुसाइड प्लस क्रूएल्टी दोनों सेक्शन लगे। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस, द हस्बैंड अबेटेड हिज वाइफ टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ क्रूएल्टी। उसने उसको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अभी डाउरी डेथ तो नहीं बोल सकते, पर आपने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए उसको कि शी फेल्ट कि सुसाइड इज द ओनली सोल्यूशन टू कम आउटसाइड दिस प्रॉब्लम। सो इन दिस केस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी सेक्शन लगा, क्रूएल्टी का जो सेक्शन है सेक्शन 498A, क्रूएल्टी का सेक्शन है, फिजिकल क्रूएल्टी, मेंटल क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। सेक्शन 498A और सेक्शन 306 ये दोनों सेक्शन अप्लाई हुए उस हस्बैंड के बेसिस पे, और उसको 5 साल की सज़ा हुई प्लस उसको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन भरना पड़ा। ही हैड टू पे 1 लाख रुपीज़ टू हिज वाइफ्स फैमिली एंड फॉर कॉजिंग क्रूएल्टी। तो 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए कंपनसेशन भरना पड़ा। नाउ एक्चुअली जब वो ट्रायल कोर्ट में गए थे, सेशन कोर्ट में गए थे, मैंने आपको अभी फाइनल जजमेंट बताया, आई एम टेलिंग व्हाट हैपेंड। जब वो ट्रायल कोर्ट में गए तो कौन कौन अक्यूज थे, सास, ससुर और हस्बैंड। ऑल ऑफ 3 वर लायबल फॉर क्रूएल्टी एंड अबेटमेंट टू सुसाइड। सो ट्रायल कोर्ट एक्विटेड एवरीबडी, सभी को एक्विट कर दिया, छोड़ दिया। तो प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट में ध्यान में आया
कि फादर जो सास ससुर है उनको एक्विटल उनका रखा, लेकिन हस्बैंड को उन्होंने सजा दे दी 5 साल की प्लस 1 लाख रुपए कंपनसेशन। अभी इसमें सोचने वाली ये बात है कि क्यों पहले एक्विटल हुआ, वाई वॉज देयर एक्विटल, व्हाट वॉज द रीजन फॉर द एक्विटल ऑफ दिस पीपल, सभी को तीनों को क्यों एक्विट कर दिया। तो रीजन ये था, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द एफआईआर lodged by the girl's father was 6 hours late after he came to know that his daughter has died. She has committed suicide. मतलब जो लड़की के पिता थे उन्होंने एफआईआर जब लॉन्च की तो उनको जब पता चला कि मेरी लड़की ने सुसाइड कमिट कर ली है, और कहीं ना कहीं माता पिता को पता ही होता है, लड़की बताती है कि भाई घर वाले हस्बैंड मारता है, सास ससुर मारते हैं, वॉट उन्होंने 6 घंटा एफआईआर लॉन्च लेट की। 6 घंटे तक आपने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की, इसके बेसिस पे शक। 6 घंटे मतलब इन लोगों ने हमको हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, लड़की ने सुसाइड कमिट कर ली और अभी हमसे पैसे हड़पना चाहते हैं, हमें पनिश करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने हमारे ऊपर फेक केस की। अगर जेन्युइन केस होती तो जल्द से जल्द एफआईआर जाके लॉन्च कर देते। तो हाईकोर्ट ने ये कहा, ये हाईकोर्ट ने कहा है, इट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जस्टिस देसाई, इन्होंने कहा इट इज अब्सर्ड whenever any father who comes to know that his daughter has committed suicide, will he go to the police or will he start crying or will he want to see his daughter first? पहले वो अपनी बेटी के पास जाएगा, बैठेगा, रोएगा, हुआ क्या, what happened? कभी भी कुछ ऐसा होता है तो वी सिट, क्या हुआ, या हम झगड़ते भी हैं कि हम, वो बोल रही थी कि ये मुझे मारते हैं पीटते, फिर भी हमने आपको कितना समझाया और उसने फाइनली सुसाइड कमिट कर ली। तो 6 घंटे का डिले इज क्वाइट नॉर्मल। 6 दिन का डिले आई कैन अंडरस्टैंड, 6 घंटा इट्स क्वाइट नॉर्मल दैट फादर विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट द थिंग दैट हिज डॉटर हैज पास्ड अवे बिकॉज ऑफ सुसाइड कॉज्ड बाय द क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड हिज इन लॉज। कोर्ट को तो इन लॉज मतलब सास ससुर के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हस्बैंड के खिलाफ मिला। एंड दैट्स वाई हाई कोर्ट ने बोला द जुडिशियल ऑफिसर्स हैव टू बी मोर सेंसिटिव टू सच केसेस and apply a little bit of common sense, and that's why जो acquittal था that was changed by High Court to 5 years of imprisonment plus 1 lakh रुपए compensation to the wife's family. So that was with respect to abatement of suicide, जहाँ पे वज्रेश अन्वेकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्रूएल्टी प्लस अबेटमेंट टू सुसाइड, बिकॉज सुसाइड क्यों करी उसने, कैसे करी, हाउ दैट सुसाइड वॉज अबेटेड बाय क्रूएल्टी। आपने उसको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया दैट शी डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू कमिट सुसाइड। सो दैट इज वाई क्रूएल्टी का सेक्शन और अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन दोनों साथ में लगाए गए। सो दैट वाज अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड।